The phrase of bulldozer action has entered the common lexicon these days. Just a few weeks ago, 4 to 5 bulldozers rolled into Delhi's Jahangirpuri area and demolished the alleged illegal encroachment. No prior notice was given, no time given to the residents to evacuate, and several shops, handcarts, and settlements of street vendors were destroyed in the action. There were claims that those who had the documentation, even their establishment bore the brunt of the bulldozer action. This bulldozer action was carried out by the North Delhi Municipal Corporation. Today, another municipal corporation in Delhi tried to follow the same playbook but rather unsuccessfully. Bulldozers today rolled into Delhi Shaheen Bagh area, the heart of the citizenship law protest. The demolition drive by South Delhi's BJP controlled civic body started amid heavy police presence. As a bulldozer arrived at a busy market around 10:15 am, supporters of the Congress party sat in front of the machine in protest, blocking its way. Local residents of the area also gathered around to protest. Soon, Aam Aadmi Party's Okhla MLA Amanatullah Khan arrived at the spot. Khan said that he had got all the illegal structures removed already and none were left in the area. The bulldozer was about to remove a scaffolding set up for the painting of a building when Khan intervened. He spoke to the representatives of the local market association in the presence of police and had a temporary structure removed. The bulldozer returned soon after without damaging even a single structure. Shaheen Bagh famously became the epicenter of the nationwide protest against Citizenship Amendment Act in 2019 and 2020. Activists and opposition parties alleged that the anti-encroachment drive is aimed at targeting one particular community. Meanwhile, CPIM had also filed a petition regarding this in the Supreme Court. However, the apex court refused to intervene in the matter and asked the political party to approach the High Court. Meanwhile, our reporter on the ground, Swarna Jha, spoke to the locals on the ground. Here is what they said. यहाँ पर किस लिए आए थे? मैं इसलिए आया था साइन बाग का मैं रहने वाला हूँ। ये हमारे फुटपाथ को तोड़ने के लिए आए थे। अच्छा, तोड़ने के लिए आए तो वापस चले गए, इसीलिए इसका झंडा फहरा रहा हूँ। खुशी है इस बात की कि वापस चले गए? जी जी। तो आप इस इलाके में कितने सालों से रहते हैं? मैं 96 से हूँ। तो इस तरह की कार्रवाई पहले कभी देखा? नहीं, पहले कभी नहीं हुई, पहले कभी नहीं ऐसी कोई कार्रवाई। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, यहाँ के लोग जो है कहते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं वो अधिक रहते हैं, इस वजह से इस तरह की कार्रवाई। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब मिलकर रहते हैं। मेरे पास जो लेबर काम करती है 85 आदमी है, वो सब हिंदू हैं, आप मेरे मोबाइल में चेक कर सकती हैं। तो यहाँ पे भाईचारे की बात, भाईचारा बिल्कुल है, साथ मिलकर। जी जी। आज सुबह जो प्रक्रिया हुई, बुलडोजर आया यहाँ पर लेकिन चला गया। जी जी। तो यहाँ कुछ ऐसा था ही नहीं कि बुलडोजर अपना काम करती, वो उनका पागलपन है एमसीडी का, जो अपना पागलपन था वो अपना क्या करे, उतारते हुए चली गई, कुछ है नहीं, मिला ही नहीं। अगर होता तो एक भी बिल्डिंग आपको सामने में नजर आ रही है, दिख रही जो गिरी हुई हो या कुछ गिरा हो, उन्होंने अपना पुताई करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए लगा रखा था स्ट्रक्चर, देख लीजिए उनको। अब उनको ये कह रहे हैं कि मैंने गिरा दिया है, ये क्या है, कुछ है, नथिंग है, कुछ भी नहीं है ये। अब क्या कहेंगे इसको, आप क्या मानती हैं इसको? अतिक्रमण हटाओ कहेंगे आप? जब अतिक्रमण तो होता है जब रोड पे या गवर्नमेंट के सबके लिए बराबर है, नहीं हम इसके खिलाफ है, नहीं है। अतिक्रमण अगर रोड पर है तो उसको गिराएं, बेशक जरूर है, हम उसके पक्ष में, लेकिन जब है ही नहीं तो इसको फालतू में हवा देना। क्या लग रहा है, ऐसे क्यों तूल दिया जा रहा है इन बातों को? पता नहीं, हमें तो नहीं लग रहा है कि इसको तूल देना चाहिए। अगर दे रहा है तो पागलपन ही हम कहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं समझेंगे। जो आज यहाँ पे जो कार्रवाई हो रही थी उसका विरोध करने के लिए आप लोग यहाँ पर आए जी। तो ये जो कार्रवाई थी वो तो अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पब्लिक को परेशान करा जा रहा है और ये जनता को परेशान करा जा रहा है। ये सोच रहे हैं कि मतलब क्या नाम है, इन्हें परेशान करके ये हम हमेशा यही रहेंगे, कोई ना रहेगा, पब्लिक एक हो गई ना, यही चले जाएंगे, यही नहीं रहेंगे। तो क्या ये राजनेताओं द्वारा किया जा रहा है लोगों को परेशान करें? वही लोग कर रहे हैं, जो भी परेशानी उठा रहे हैं, जो भी परेशान कर रहे हैं उधर से ही कर रहे हैं, जनता कोई कुछ नहीं कर रही। कोई यहाँ पे आप कह रहे हैं कि कोई अवैध, यहाँ पे अवैध नहीं है, अवैध सब वो है, अब कागज है सब। जहाँ मुसलमान है वहीं, नाम बताइए अपना। इरशाद अली। जहाँ मुसलमान है वहीं अवैध है, बस आप कहीं भी देख लो, किसी चीज़ भी उठा कर देख लो, जहाँ भी मुसलमानों का एरिया है वहाँ वो चीज़ को अवैध कर दिया, अनलीगल कर दिया। क्यों, ये मुझे ये समझ में नहीं आती, ये सरकार आखिर मुसलमानों के साथ में क्या करना चाह रही है?
ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हमारे। काम धंधे से बेकार, हर चीज़ से बेकार, सिर्फ एक मुसलमान को एक टारगेट बना रहा है। तो आपको ये लगता है कि शाहीन बाग में इसलिए हटाया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है वो अधिक है? जी 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 जी। यहाँ पे और भी बतेरी वो कॉलोनी है, वहाँ बिल्डोजर नहीं गया, वहाँ कोई मीडिया नहीं गया, कुछ नहीं गया। सिर्फ एक ये शाहीन बाग के अंदर मुसलमान ज़्यादा है ना, वहीं है बिल्डोजर, और कहीं नहीं है बिल्डोजर। ये पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, क्या सोच के बैठे हैं, क्या चाह रहे हैं। मुसलमानों को बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहे हैं तो एक बार ही कर दो ना। आगे मंशा क्या है इस सरकार की, जो मुसलमानों के खिलाफ हर जगह मुसलमान, कभी अजान के ऊपर, कभी किसी चीज़ के ऊपर, आखिर ये कभी लाल किले के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, के सबको परेशान करा जा रहा है। अरे गरीबी लोग वोट देते हैं, तुम नेता बनते हो और गरीब लोगों को तुम मार रहे हो, उनके ही झोंपड़े तोड़ रहे हो, तो तुम्हें कौन देखेगा फिर? तुम्हें कौन देखेगा? अरे तुम भी तो उनको देखो, जब भी तो कोई तुम्हें देखेगा। सारे मकान तोड़ दिए वहाँ भी, उसमें भी जहांगीरपुरी में भी सब परेशान है, सबके बच्चे परेशान है, खाने से परेशान है। किसी की परेशानी नजर नहीं आ रही, अपनी वोट नजर आ रही है बस। तो क्या लगता है कि चुनाव को लेके आने वाले जो एमसीडी के चुनाव है वो ही है, हाँ उसी की वजह से, और कोई वजह नहीं है। जनता के बारे में ये सरकार सोचती, ये सरकार कहीं नहीं जाती, सही रहती। कहते हैं ना, तुम जनता के बारे में सोचो, जनता तुम्हारे बारे में सोचे। जब तुम जनता के बारे में ना सोच रहे, तुम्हारे बारे में कौन सोचेगा? वो सोच कहाँ से लाएगा इंसान? वो सोच तो तुमने भ्रष्ट कर दी। देखिए, लोगों किसी ने विरोध नहीं किया और आराम से जो भी बात थी पीसफुल तोड़वाने को तैयार है। जो इंक्रोचमेंट है, विधायक जी 4 दिन से लगातार फॉलो कर रहे हैं, विधायक जी के साथ हम भी हैं, और पूरे एरिया में एक दुकान पे जाके लोगों से अपील कर रहे हैं जो भी इंक्रोचमेंट है आप खुद ही हटा लीजिए, अच्छी बात नहीं है, वो रोड कवर कर रखा है। तो 4 दिन से विधायक जी खुद मेहनत कर रहे थे। आज आइए, प्राइवेट कोई वाइट वॉश करा रहे होंगे साहब, उनकी बिल्डिंग पे आगे खड़े हो गए, प्राइवेट, आप देखिए वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, उस पर बनाया हुआ है, उसको आगे तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, वो इंक्रोचमेंट कहाँ से हो गया? आप भाई परमानेंट वो स्ट्रक्चर है, जो रोड पर आ रहा है उसी को इंक्रोचमेंट तो बोलेंगे आप? जो ठेली पकड़ी या लगे प्राइवेट, आप बताइए। वो खुद ही अमंत भाई ने, विधायक जी ने खुद ही खुलवाया उनसे, जिनका वो बंदा हुआ था, भाई से खोल लो, इस पर कंट्रोवर्सी होगी, उसे खुलवा दिया है, तो इसमें कंट्रोवर्सी, और किसी ने विरोध भी नहीं किया। बताइए किस साहब ने विरोध किया? किसी ने विरोध नहीं किया उस पर। तो बस आपने कहा कि 4 दिन से विधायक जी जो है वो यहाँ पे जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने की कोशिश करें, तो ये प्रक्रिया पहले क्यों नहीं शुरू? जी, ये प्रक्रिया पहले क्यों नहीं? कोशिश पहले से विधायक जी पूरे एरिया में इंक्रोचमेंट को लेकर काम करते हैं। आप जाके बटलॉस में देख लिए, वहाँ पे फेंसिंग कराई हुई है, जगह जगह अपील करते रहते हैं, लगातार कोशिश मुहिम में रहते हैं। अब लोगों से अपील ही तो कर सकते हो आप, और इससे ज्यादा एक विधायक अमानतुल्लाह खान साहब जाके अपील तो कर सकते हैं। उस अपील का इफेक्ट भी हुआ। आप देखिए कौन सी इस पे इंक्रोचमेंट है, आप बताइए कौन सी पटरी लगी हुई है उस रास्ते पे? आप बटलॉस में जाके देखिए जहाँ फेंसिंग लगाई हुई है। तो कोशिश विधायक जी की ये एरिया की रहती है कि हमेशा इंक्रोचमेंट पे कार्रवाई हो। अब ये एमसीडी का काम है, एमसीडी हमारे पास है नहीं जो उस पर हम जबरदस्ती थोपे। अब यहाँ विधायक जी तो ये करें, पीडब्ल्यूडी का रास्ता है, आप अगर इंक्रोचमेंट की बात है आप मुझे बताइए, मैं उससे ना कराऊं तो बात है। आप वहाँ के जो एमएलए रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आप उससे बात तो करिए, एक बार बात करने को तैयार ही नहीं। एमसीडी डायरेक्ट यहाँ पे बिना नोटिस दिए कार्रवाई कर लिए? कोई नोटिस नहीं है किसी के पास भी कोई नोटिस नहीं है। अगर नोटिस आप, अगर मैं कह रहा हूँ नोटिस भी आप बताइए ना कहाँ पे इंक्रोचमेंट है। आप जिसको तोड़ा है खुद ही खोला है, उसको आप इंक्रोचमेंट बता रहे हो, आप बताइए इसमें। तो क्या लगता है एमसीडी चुनाव जो होने वाले हैं उसको लेकर चुनाव तो इन्होंने खत्म ही कर दिए जो होने वाले थे वक्त पर, वो 1 साल के लिए आप पता नहीं कराएंगे भी नहीं कराएंगे, इनकी तो मर्जी है। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ चाहे कराएंगे, जहाँ चाहे, और कराएंगे भी तो जीत जाएंगे। तो ये लोग तो अपनी मर्जी से सारा कुछ फोकस कर रहे हैं, इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। शाहीन बाग पूरा जामिया इलाका, शाहीन बाग अमन परस्त एरिया है जिसको कंट्रोवर्सी में पैदा किया जाता है, कोई ना कोई उस पर इशू पैदा करने के लिए। आप बताइए कहाँ कोई पंगे हो रहे हैं? कलीमुल साहब हमारे साथ है जो AIMI के प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट। सर, जो यहाँ पे जिस तरह की कार्रवाई आज देखी गई शाहीन बाग में, और बुलडोजर आया लेकिन वो चला गया, चलाने उसने जो भारतीय जनता पार्टी ने देश में जो बुलडोजर आई है, जो उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर और मध्य प्रदेश में मामा बुलडोजर, उसके बाद में अमित शाह बुलडोजर चल रहा, जो गरीबों के सीने रौंदते हुए गरीबों के रोजगार रोना है। अभी उसने जो है जहांगीरपुरी में उनको बेघर कर दिया, बेरोजगार कर दिया। अब उनकी कोशिश थी राजनीति, शाहीन बाग में भी उनको मुंह तोड़ जवाब। जो यहाँ पे अतिक्रमण है, यहाँ पे जो अवैध तरीके से उनको हटाया जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? देखिए अतिक्रमण कहाँ है, ये शटरिंग को सीढ़ी लगाते हो, कुछ काम करते हो ऊपर, तो एक सीढ़ी लगा गई थी, उसको हमारे बहुत सारे चिल्ला रहे हैं क्या शटरिंग कभी अतिक्रमण हो सकती है? ये सिर्फ बीजेपी जो पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रही थी उसको मुंह तो। जी, तो ये थे AIMI के सदस्य, इनका ये कहना था कि यहाँ पर कोई भी अवैध तरीके से जो है वो अतिक्रमण नहीं किया गया है। ये सरकार जो है वो एरिया को टारगेट कर रही है और वो अलग अलग तरीके से जो गरीब लोग हैं उनको परेशान करने का जो है वो तरीका निकाल रही है।